اور ال مل کریے دعا سجنا جتھے جاون ٹھنڈیاں چھاوانے تم مسیحا ہو اس قوم کے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے ہمیں تم سے پیار ہے تیری محنت بھی ایسا رنگ لائے گی تیری ہمت چٹانوں سے ٹکرائے گی گر تو ثابت قدم ہوگا ان کی طرح جو کہ غازی بنے جیتے سب بازیاں مسیحا ہو اس قوم کے ہمیں تم سے پیار. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر علی کنوری اور سی آئی ڈی کے ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال مانسہرہ میں. ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ایک خوف ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس مرض کی وجہ سے جو ہیں وہ ہسپتالوں میں داخل ہیں. وہ اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پاکستان میں بھی یہ وائرس جو ہے بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور اس وقت ہم مانسہرہ میں موجود ہیں اور مانسہرہ میں بھی کئی کیسز ہو چکے ہیں. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک اسپیشل پروگرام ہے اور اسپیشل پروگرام ان اسپیشل لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں پر پوری دنیا جو ہے جہاں پہ عوام کرونا وائرس کا نام سنتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں وہاں سے، جہاں پر گورنمنٹ نے عوام کو گھروں میں محصور کر دیا ہے، جہاں پر دور سے اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس کا مریض آیا ہے تو وہ اس سے کوسوں دور جاتا ہے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں میں جن کے ساتھ آج موجود ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ لوگ ہیں کہ جو اس مریض کے پاس ہیں وہ اس مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال کے ڈی ایم ایس ڈاکٹر یاسر صاحب، ان کے پاس ہم موجود ہیں. ڈاکٹر یاسر صاحب، پہلے تو سی آئی ڈی نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہوا، اپنے خاندان کو چھوڑا ہوا اور یہاں پر ہسپتال میں اور اس وائرس کے درمیان یہاں پر موجود ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی جناب ناصر صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک بولا جی. یہ جو کورونا کووڈ-19 نوول کورونا کی وجہ سے جو ایک دہشت پھیلی ہوئی ہے اور خاص کر ہمارے ملک میں جہاں پہ لوگ احتیاطی تدابیر بھی نہیں اختیار کر رہے ہیں، ماسک اور گھروں کے اندر رہنا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، کورونا کے پھیلاؤ کا سبب زیادہ بن رہا ہے. ایسی صورتحال میں بھی آپ نے دیکھا ابھی ہاسپٹل کا آپ نے سارا وزٹ بھی کیا ہے، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو سٹاف ہے، پیرامیڈکس، نرسز، یہ بالکل چٹان کی مانند کھڑے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور ہمیں جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے، ہمیں حفاظتی تدابیر کے لیے جو ایکوپمنٹس ہیں، جو گاؤنز ہیں، جو گاگلز ہیں، جو شوز ہیں، وہ پرووائڈ نہیں کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. لوگوں نے، اپنے ڈاکٹرز نے، اسٹاف نے اپنے گھروں کو آنا جانا چھوڑ دیا ہے. یہاں پہ ہم نے 30 لوگوں کی اکوموڈیشن کا بندوبست کیا ہے. ہم نے گروپس میں ڈیوائڈ کر کے لوگوں سے ڈیوٹیز لے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو ہم نے پیچھے بٹھایا ہوا ہے وہ بھی بےتاب ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ڈیوٹی پہ جو ہے وہ آنے دیا جائے. انشاءاللہ ہم ثابت قدم ہیں. صرف ہماری درخواست یہ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں وہ فراہم کیے جائیں، جو کہ ساری دنیا میں دستور بھی ہے اور وہ ضروری چیزیں بھی ہیں، تاکہ ہیلتھ سٹاف کو، ہمارا جو ایچ آر ہے، ہیومن ریسورس ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آگے جیسے مزید کرائسس آ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس سے نبرد آزما ہونے کی ہمت عطا فرمائے. اور لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس کو سیریس لیں. یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے. مشکل ہوتا ہے اپنے گھروں میں بیٹھنا، اپنے پیاروں سے دور رہنا، لیکن اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. اپنے گھروں میں بیٹھیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، استغفار کریں اور اس کی مہربانی کی جو ہے نا وہ استدعا کریں، تاکہ اللہ پاک ہمیں اس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے. بہت شکریہ. ڈاکٹر یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر یاسر صاحب نے بھی جس طرح بات کی، میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں، جو پیرامیڈکس ہیں، جو نرسز سٹاف ہے، جو ہسپتالوں میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کو جہاں پر پوری قوم جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے. اور آج جو وائٹ پرچم جو ہے وائٹ وہ لہرایا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف ان کے لیے کہ پوری دنیا میں جس طرح ڈاکٹرز نے جو چائنا میں اس وقت چائنا شکست دی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں 99% جو 1% اگر دیگر اس
उसमें लोगों का हाथ भी है, तो 99% उन डॉक्टर्स का हाथ है कि जिन्होंने अपनी जान जोखम में डालकर उन मरीजों का ख्याल किया, उनकी ट्रीटमेंट किया और उस मुश्किल वक्त से निकले हैं। और मानसेरा में भी यहाँ पर सिचुएशन इस तरह की ही है, अस्पतालों में बिल्कुल इमरजेंसी लगी हुई है, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट मानसेरा है वो लॉकडाउन है। अभी अस्पताल में हम मजीद जाते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, नर्सेस स्टाफ को देखते हैं, दीगर डॉक्टर्स को देखते हैं। हमारे साथ रहिए। मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हॉस्पिटल में दीगर जगहों पे आपने देखा कि नर्सेज जो हैं वो भी मरीज़ों की ट्रीटमेंट कर रही हैं यहाँ पर और अपनी जान की परवाह किए बगैर। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर शहरियार साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया और इस वबा के पेश नज़र यहाँ पर बगैर किसी, मैं अभी ये मेरे साथ ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि ये देखें सिंपल एक मास्क इन्होंने, सिंपल सा मास्क है, ये कोई खास मास्क भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल मास्क है जो बाजार में 10 रुपये का मिलता है, वो मास्क इन्होंने, और इसके ऊपर मैं जिस तरह मैंने कपड़े पहने हुए इस तरह डॉक्टर साहब ने भी कपड़े पहने हुए, लेकिन यहाँ पे ये 24 और यहाँ पे बैठे हुए कोई सेफ्टी नहीं है। उसके बावजूद कोरोना के मरीज हैं या जो भी मरीज हैं यहाँ पे आते हैं, ये उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बारे में आप? अभी ही आपसे कुछ देर पहले उसका भी बेटा ये है, क्रिटिकल पेशेंट आया था, डायबिटिक थी और उनका रीनल फेलियर भी था, उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, क्रेपिटेशन थी। हमने इसी तरह इनको हैंडल किया, CPR किए, ECG किया, स्टाफ ने उनका कैथेटर पास किए। हमने ये नहीं देखा हमें क्या रिस्क है, लेकिन हमने फिर भी मैनेज किए। अनफॉर्चुनेटली बस उनकी कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा थी, वो एक्सपायर होती हैं। तो ये है कि हमें अब N95 मास्क और बाकी ये बुनियादी चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि आप लोगों की भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक इन्फेक्ट हो जाए तो मैं 100 पेशेंट्स है तो मैं 100 पेशेंट्स को लगाऊंगा, ठीक है। अगर हम इफेक्ट होंगे तो हम किस तरह ट्रीटमेंट कर सकेंगे? इटली में मिसाल लेंगे, मतलब 2600 डॉक्टर हैं ना, स्टाफ वो मुतासर हो गया। अब उनके पास अपने डॉक्टर्स नहीं रहे, क्यूबा से डॉक्टर्स आए हैं, रशिया से डॉक्टर आए हैं कि उनके आप ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उनके अपने जो डॉक्टर्स थे वो क्वारंटाइन में चले गए। क्योंकि एक भी डॉक्टर अफेक्ट हो तो वो तो फिर क्वारंटाइन में जाएगा, किसी पेशेंट को तो ट्रीट नहीं कर सकता। बिल्कुल डॉक्टर शहरियार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की और यहाँ पर मैं भी ये बात कहना चाहूँगा, जिस तरह मैंने पहले भी ये बात की थी कि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से बहुत अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं हमारी हॉस्पिटल्स में, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब के पास अभी देखें हिफाजती किट नहीं है, यहाँ पर N95 जो मास्क हैं उससे एक वो ये हो जाता है कि अगर वो डॉक्टर साहबान है, जो स्टाफ है, वो कम से कम उस वायरस से तो महफूज रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा फंड अगर आपने रिलीज़ किया है तो सबसे पहले वो फंड आम लोगों को, तो आप मरीजों के लिए जो मेडिसिन या जो भी सहूलियात हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में करें पहले, क्योंकि ये मर्ज ऐसा है कि इस मर्ज से निपटने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। जिस तरह इन्होंने भी बात की कि इटली में ऐसा ही हुआ था और इसको हमने बहुत लाइट लिया था, तो जब इटली वालों ने लाइट लिया तो उसकी हालत सारी दुनिया के सामने है। यहाँ पर भी यही बात है कि डॉक्टर्स के लिए सबसे पहले डॉक्टर्स के लिए हिफाजती किट्स, उनको जो यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, वो यूनिफॉर्म फौरी तौर पर मानसेरा के डॉक्टर्स को फराम किया जाए। इनको मास्क जो आला क्वालिटी के मास्क हैं वो फराम किए जाएँ। मैं फिर कहूँगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहरियार साहब, आपको CID न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने एक ऐसे वक्त में और ऐसी वबा के इस जो दरमियान में ये जा रहा है टाइम, इस वक्त भी आप अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तेरी मेहनत तभी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो के गाजी बने जीते सब बाजियां। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी किंग अब्दुल्ला मानसरा में जो किंग अब्दुल्ला टीचिंग हस्पताल है उसका हमने विज़िट किया, और जो आज का जो हमारा प्रोग्राम था वहीं पे मैं बात करूंगा कि आज फिर, और मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि जहाँ पे आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है डॉक्टर्स को सलाम पेश कर रही है, उनके इस जज्बे को सलाम पेश कर रही है। हम फिर अपनी पूरी टीम की तरफ से उनको सलाम पेश करते हैं, उनके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं। और एक बात जो यहाँ पर अभी आपने वीडियोज़ में भी देखा, जिस तरह की हस्पताल में जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसका क्रेडिट अगर जिस बंदे को जाता है तो वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किंग अब्दुल्ला टीचिंग हस्पताल के जो इस वक्त MS हैं डॉक्टर शहजाद साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और इनको भी हम सलाम पेश करते हैं CID न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से कि इस वक्त तमाम डॉक्टर्स, तमाम जो पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं, उन्होंने अपने जो घर बार है वो छोड़ दिया है। और इस वबा के दौर में इस वक्त इतनी वबा फैली हुई है, और जहाँ पे लोग इस वबा का नाम सुनते हैं दूर भागते हैं, ये उन पेशेंट को सेहतियाब करने के लिए उनके नज़दीक रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहें? जो आपने बात की, मैं उसके पस मंज़र में सिर्फ यही कहूँगा कि टीम्स जो भी हों, चाहे खेलने वाली टीम्स हों चाहे काम करने वाली हों, वो अपने लीडर को देखती हैं। अगर वो रोल मॉडल का काम कर रहा है तो वो उसके साथ फॉलो करती हैं, उसकी स्पिरिट को फॉलो करती हैं। मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी 29 साल नौकरी में एज अ रोल मॉडल काम किया है ताकि लोग मुझे फॉलो कर सकें। यहाँ की सारी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। क्लास 4 से लेकर स्वीपर से लेकर पैरामेडिक्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, ये सब के सब मुझे फॉलो कर रहे हैं और कोरोना की SOPs के मुताबिक अवामुन नास का इलाज कर रहे हैं। इन सब ने अपनी ज़िंदगियां हथेलियों पर रखी हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी कौम की कीमती जानों को बचा सकें। लिहाजा मैं कौम से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी इस मेहनत को ज़ाया नहीं करना है, और जो SOPs हम वक्तन फ़वक्तन आपको बता रहे हैं उन पर लाजमी अमल करें ताकि इस वायरस को हम हमेशा हमेशा के लिए सरज़मीन पाकिस्तान से शिकस्त देकर भगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है। नाज़रीन, जिस तरह अभी MS डॉक्टर शहजाद की बात आपने सुनी, इस वक्त हमारे साथ राजा साहब मौजूद हैं। मैं इनके बारे में बताता चलूं कि इस वक्त जो मेडिसिन का और दीगर जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मरीज़ आते हैं, उनसे पहले ही यहाँ पर उन सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं, मास्क के हवाले से, दीगर हवाले से। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है कि हम फिर इनको भी सलाम पेश करते हैं, क्योंकि सारे लोग जो भी हैं वो डॉक्टर्स हैं, वो MS से लेके नीचे जो चपरासी तक हैं, वो सारे उन सबको हम सलाम पेश करते हैं कि वो इस वबा के बावजूद यहाँ पर, जब सबको पता है कि जी उसके जरासीम मौजूद हैं, मरीज़ जो आ रहे हैं उनमें कई में जरासीम मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घरों को भूल चुके हैं, अपने बीवी बच्चों को भूल चुके हैं, और उन मरीज़ों के लिए यहाँ पर वो मौजूद हैं। राय साहब क्या कहेंगे आप? जी, ये जो अभी हमारी तरफ कोविड-19 का फ्लो अभी हमारी तरफ आ रहा है, इस सिलसिले में हम खुली तौर पे तैयार हैं। हम ज़हनी तौर पे, इखलाकी तौर पे एज, और जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, हमारा प्रोफेशन है, हमें इजाज़ की बात की कतई इजाज़त नहीं देता कि हम ऐसी आफतों से या ऐसी मुसीबतों से पीछे हटें। हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारी प्लस हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे क्लरिकल स्टाफ, हम दिन रात इतने लगे होते हैं। जब से ये पिछले एक हफ्ते से हम लोग अपने घरों को भूल चुके हैं। हमें यकीन करें कि 24 घंटों में 1, 2, 4 मिनट हमें घर में बात करने के टाइम भी नहीं मिलता है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि अभी तक हमारे पास पर्सनल इक्विपमेंट्स, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स था, वो बहुत कम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, जिससे हमने काम चलाया। हालांकि DG ऑफिस की तरफ से हमें बहुत कम मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम चल रहा है इंशाल्लाह। लेकिन उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस पर काबू पाएंगे। लेकिन लोगों से हमारी दरख्वास्त ये है कि हॉस्पिटल का रुख कम से कम करें, इंतहाई इमरजेंसी के बगैर हॉस्पिटल का ना आए। हम अभी भी देख रहे हैं कि बाज़ारों में उसी तरह रश लगा हुआ है, बच्चे उसी तरह खेल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, महलों में, गलियों में, एक के साथ दूसरे के साथ, बाज़ारों में उसी तरह लगे, हॉस्पिटल में लोग उसी तरह आ रहे हैं। हमारी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए दिन रात यहाँ पे खड़े हैं, हम अपनी जानें आपके लिए कुर्बान कर देंगे, लेकिन आप कम से कम हमारे साथ इतना तावन करें कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, रिश्तेदारों से, अपने सके भाइयों से, अपने चजात घरों के भी न जाएं, सबके अपने घरों में बैनर लगा दें, दरवाजे लॉक कर दें। प्लीज़ हमारी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हमारा सिर्फ 2 हफ्ते की ये साथ दें ताकि हम इस चीज़ पे काबू पा सकें। आप अपनी जानों तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, और आपके इसी जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं कि आपने इससे बढ़ कर है शायद इतनी बड़ी बात की। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। हम कुछ भी ना होने के पास, हम उस फौजी की तरह हैं जिसके पास बॉर्डर पे आपको छोड़ दिया जाए और उसके पास कुछ बुलेट ना हो, उसके पास कोई बंदूक ना हो। हमारी मिसाल अभी इस तरह के, हम इस तरह लड़ रहे हैं। हमारे क्लास 4 हमारे पैरामेडिक ये देख रहे हैं कि हमारे पास उस तरह की अभी तक इक्विपमेंट्स नहीं आए हैं।
प्रोटेक्टिव किट्स नहीं हैं, अगर हम अपनी प्रोटेक्टिव किट्स हमारी गवर्नमेंट या ये चीज़ें हमारा ख्याल नहीं करेंगी, तो ये मैं इनको बड़े वाज़ेह अंदाज में कह देना चाहता हूँ कि आपके पास ये हेल्थ डिपार्टमेंट का लिमिटेड सा सोर्स है। अगर ये सोर्स आपने ज़ाया कर दिया, इनको किट्स किए बगैर उनको इसी तरह ओपन डिस्प्ले किया, तो शायद ये अगर कोई वायरस से हमारे अपने स्टाफ अटैक ज़द में आ गए तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और हमारे पूरी कम्युनिटी के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। शुक्रिया राय साहब। और बिल्कुल इतने कम वसाइल के बावजूद, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये यहाँ पर ये मौजूद हैं और आवाम की इतने कम वसाइल के बावजूद यहाँ पर ये मौजूद हैं और आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर अपनी जानें जो है इन्होंने जोखम में डाली हुई हैं, और इनकी इस जज्बे को, इनकी इस काविश को, इनकी इस कुर्बानी को ये कौम कभी नहीं भूलेगी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे CID न्यूज़ अप के सीनियर हमारे जो सहाफ़ी हैं इकराम कुरैशी साहब हैं, हमारे सरफराज यूसुफजई साहब हैं, इसी तरह बाकी दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आखिर में इस इकराम भाई से पूछूंगा कि इकराम भाई, डॉक्टर्स की जो ये काविश है, जो इतना बड़ा ये सानेहा है, इस वक्त मैं सानेहा ही कहूँगा, और ये एक क़यामत का समा है कि पूरा इस वक्त जो है पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस की वजह से वबा फैली हुई है, और पूरी दुनिया में ही वो जो तबका है में वो डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान जोखम में डाली हुई है। मानसेरा में भी जिस तरह आपने देखा कि 3 केसेस तो हो चुके हैं, और एक केस जो है वो बिल्कुल क्लियर है, 2 और तीसरे का भी है कह रहे हैं, और बाकी लोगों में भी लोग आ रहे हैं, बीमार हैं, और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे? जी शुक्रिया नासिर अली तनोली। मैं इस मौका पे बतौर तर्जुमान मानसरा प्रेस क्लब और मानसरा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मानसरा के मीडिया की तरफ से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ महकमा सेहत के इन बहादुर जवानों को, इन मुजाहिदों को, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, क्लास 4, सिक्योरिटी, स्वीपर और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम शोबाजात इनके हाई अलर्ट हैं, और इस वक्त वो माज़ों पे खड़े उस अनदेखे दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं जो नज़र नहीं आ रहा हमें, और वो छुप के वार कर रहा है। तो उसके दिफा के लिए हम सबको, पूरी कौम को इनके साथ इकट्ठा खड़ा होना होगा, इनके साथ देना होगा, और इनके कंधे के साथ कंधा मिला के हमें चलना होगा। और मैं इस मौका पे इन्हें तमाम महकमा सेहत के जितने शोबाजात हैं इनको मीडिया की तरफ से सलूट पेश करता हूँ, इनको सलाम पेश करता हूँ, और हम इनके साथ इनके शाना बिशाना हैं। सरफराज यूसुफजई साहब हैं, सरफराज भाई इनसे भी बात करते हैं। सरफराज भाई जो हैं इन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त, अभी हमारे साथ पूरा ये जो अभी हमारी टीम थी CID न्यूज़ अप की, तो ये साथ थे, और इन्होंने जो हॉस्पिटल में आपने भी देखा कि डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिक्स जो स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो सारे जो हैं वो अपनी जान जोखम में डालकर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं तो सबसे पहले CID न्यूज़ की तरफ से स्पेशल डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मैं तो यही कहूँगा कि हमें तुमसे प्यार है। और जिस तरह डॉक्टर साहिबान ने कहा कि भाई कम वसाइल के बावजूद जो कुछ यहाँ हमारे किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के स्टाफ ने और बिलखसूस MS साहब ने जो इक़दामात उठाए हैं वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई थे, अभी अख्तर ज़ैब खटक भाई हैं, हमारे सीनियर साफ़ी हैं, CID न्यूज़ अप के बड़े एक्टिव मेंबर हैं। जिस तरह सब ने बात की अख्तर ज़ैब खटक साहब डॉक्टर्स के बारे में, स्टाफ, दीगर जो स्टाफ है किंग अब्दुल्ला टीचिंग हस्पताल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात इनकी जो हम बैसियत कौम, हम वैसी तो मीडिया पर्सन तो मैं बाद में बात करूँगा, बैसियत कौम हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए कि ये इस तरह की सिचुएशन में अनदेखे, जिस तरह इकराम भाई ने भी कहा कि अनदेखे हमारे सामने दुश्मन मौजूद है, तो उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। कम वसाइल में हम इनके लिए सलूट ही कर सकते हैं, इनको यही कह सकते हैं कि सरफराज भाई की तरह कि हमें आपसे प्यार है, आप लोग जो कुछ कर रहे हो वो हमारे लिए कर रहे हो, हमारी कौम के लिए कर रहे हो। जी बिल्कुल, जिस तरह ये हमारे दोस्तों ने यहाँ पर ये बात की, हमारे सहाफ़ी बरादरी भी है, और पूरा पाकिस्तानी कौम जो है वो आज डॉक्टरों को और तमाम जो स्टाफ है अस्पतालों में मौजूद है उनको खराज तहसीन पेश कर रहा है और उनको सलाम पेश कर रहा है। और मैं भी अपनी पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर उनको सलाम पेश करता हूँ, डॉक्टर्स और दीगर जो स्टाफ है अस्पतालों में, जो आप दिन रात उन मरीज़ों के साथ लगे हुए हैं, आपको हम सलाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जितने भी पेशेंट हैं उन सब के लिए भी हमारी तरफ से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द उनको सेहतयाब करें। और मैं एंड पे यही कहूँगा कि जिस तरह मेरे दीगर दोस्तों ने कहा कि आप हमारा फ़ख्र हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं, और पूरी कौम आज आप पर फ़ख्र करती है। आपकी इन कुर्बानियों को हम सारी ज़िंदगी नहीं जो है वो भूल सकते। और फिर एंड पे यही कहूँगा कि हमें आपसे प्यार है। वस्सलाम। मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है।